दुनिया के लोगों के सरप्राइज था कि सैकड़ों साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ आप दोनों का कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है एक एक शब्द एक एक सेंटेंस। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ஆகஸ்ட் 1947 மദ്രാஸ் பிரசிடென்சி தமிழ்நாடு. ஒரு சிலர் தங்கள் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத பயணத்திற்கு தயாராகி கொண்டிருந்தனர். ஒரு முக்கியமான பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆட்சி பொறுப்பை முறையாக ஒரு ஆட்சியாளரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு மாற்றியளித்து புனிதப்படுத்தும் நிகழ்விற்காக இவர்கள் எங்கே செல்கிறார்கள்? டெல்லி. இந்தியா அதன் சுதந்திரத்திற்காக தயாராகி கொண்டிருந்தது. ஆங்கிலேயரின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட தயாராக இருந்தது. சுய ஆட்சியை பெறுவதற்கு மக்கள் பல ஆண்டுகள் போராடிய பின்னர் ஆயிரக்கணக்கானோர் கைதாகினர். பலர் கலகத்தில் உயிர் துறந்தனர். இவர்கள் தியாகத்திற்கெல்லாம் ஒரே இலக்கு, சுதந்திரம். இந்தியாவின் கடைசி வைஸ்ராய் லார்ட் மவுண்ட்பேட்டனிற்கு ஒரு முக்கியமான பணி இருந்தது. அது ஆட்சியை இந்தியர் கைகளில் ஒப்படைப்பதற்கான பணி. அவருக்கு ஒரு சிறு சந்தேகம் இருந்தது. இந்த ஆட்சி மாற்றத்தை எவ்விதம் நடத்துவது? சாதாரணமாக கைகளை குலுக்கினாலே போதும் என்றாலும் எந்த அடையாள சின்னத்தினால் இந்த நிகழ்வை சிறப்புடன் நடத்தலாம் என்ற கேள்வி அவருள் எழுந்தது. அந்த கேள்வியை அவர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவிடம் கேட்டார். ஒரு நல்ல கேள்வி, நன்கு சிந்திக்க வேண்டிய கேள்வியும் கூட. பண்டிட் நேரு சற்றே குழப்பத்துடன் பழம்பெரும் விடுதலை போராட்ட வீரர் திரு சி ராஜகோபாலாச்சாரி அவர்களை அணுகினார். ராஜாஜி என அன்புடன் அழைக்கப்பட்ட அவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர். இந்திய நெறிகள் மற்றும் பாரம்பரிய முறைகளின் மீதான ராஜாஜியின் புலமை மற்றும் அறிவு ஆகியவற்றை நேரு மதித்தார். மூதறிஞர் என போற்றப்பட்ட ராஜாஜி இதற்கு இந்தியாவின் பண்டைய வரலாற்றில் தீர்வு ஒன்றை கண்டறிந்தார். தமிழ்நாட்டின் ஆட்சியில் மிக பழமை வாய்ந்த தொடர்ச்சியாக ஆட்சி செய்த சாம்ராஜ்யங்களில் ஒன்று சோழ பேரரசு. ஒரு சோழ மன்னரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு செய்யப்பட்ட ஆட்சி மாற்றமானது செங்கோல் என்ற நீதியின் சின்னத்தை வழங்கியதன் மூலம் சிறப்பிக்கப்பட்டது. இது அக்காலத்தின் மதகுருமார்கள் ஆசிகளுடனும் சிவபெருமானின் அருளாசியுடனும் வழங்கப்பட்டது. சோழர்கள் சிவபெருமானின் தீவிர பக்தர்கள். இன்றளவிலும் 1000 ஆண்டு பழமையான கோவில்களில் சிவ வழிபாடு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அது போன்ற ஒரு விழாவையும் அடையாள சின்னத்தையும் இதிலும் பின்பற்றலாம் என ராஜாஜி பரிந்துரைத்தார். நேருவும் இதற்கு சம்மதித்தார். ராஜாஜி உடனே தாமதிக்காமல் முதன்மையான சைவ மடமாக திகழும் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தை தொடர்பு கொண்டார். 500 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுவப்பட்ட இந்த ஆதீனம் சோழ நாட்டின் பிரதான பகுதியில் இன்றளவும் செயல்பட்டு வருகிறது. அப்போது மடத்தின் தலைமை பொறுப்பில் இருந்த 20வது குரு மகா சன்னிதானமான ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவான தேசிக சுவாமி அத்தருணம் உடல்நலம் குன்றி இருந்தாலும் இந்த புனித பணியை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் மதராஸின் பிரபல உமிடி பங்காரு ஜுவல்லர்களிடம் செங்கோல் செய்வதற்கான பணியை ஒப்படைத்தார். செங்கோலின் உச்சியில் நந்தியானது வலிமை, உண்மை மற்றும் நேர்மை ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கும் வண்ணம் கம்பீரமாக அமைந்துள்ளது. செங்கோல் தயாரிப்பு குறித்த பழைய நினைவுகளை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறார் 96 வயதாகும் திரு உமிடி எத்திராஜுலு. ஆதீனம் அவர்கள் எடுத்து செய்ய வேண்டும் என்று யாரோ சொன்னார்கள், வந்தார்கள். டிராயிங்ஸ் எல்லாம் காட்டி, இட் வாஸ் ரவுண்ட் திங் வித் எல்லாம் போல் இது மாதிரி செய்ய வேண்டியிருக்கு. இது நல்ல பெரிய இடத்துக்கு போகுது, ஜாகிரதையாக செய்யணும், நல்லா செய்யணும். தென் கிவ் தி ஆர்டர். இட் வாஸ் மேட் ஆஃப் சில்வர்
with gold coating. I was very happy to be associated with the making it. Indian people supervised it. ஏன்னா நமக்கே சுதந்திரம் வந்துடுத்து நம்ம சந்தோஷத்தில் இருந்தோம். அதுக்காக செய்ய வேண்டிய ஒரு செங்கோலை ஆதீனம் அவர்கள் நமக்கு கொடுத்ததில் மிகவும் சந்தோஷம். ஆதீனத்தின் குரு மகா சன்னிதானம் மடத்தின் இளைய மடாதிபதியான ஸ்ரீலஸ்ரீ குமாரசுவாமி தம்பிரான் அவர்களையும் ஆதீனத்தின் ஓதுவார் மாணிக்கம் மற்றும் நாதஸ்வர வித்வான் TN ராஜரத்தினம் பிள்ளை ஆகியோரையும் இந்த நிகழ்வை நடத்தி வைப்பதற்காக அனுப்பி வைத்தார். இந்த குழுவினர் ஒரு சிறப்பு விமானத்தில் டெல்லிக்கு பயணித்தார்கள். 1947 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14 அன்று இரவு ஸ்ரீலஸ்ரீ குமாரசுவாமி தம்பிரான் அவர்கள் செங்கோலை லார்ட் மவுண்ட்பேட்டனிடம் கொடுத்தார். மவுண்ட்பேட்டன் செங்கோலை தம்பிரானிடமே திருப்பிக் கொடுத்தார். செங்கோல் மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது. அதன் பின் செங்கோல் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவிடம் கொடுப்பதற்காக ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. திருஞான சம்பந்தர் அருளி செய்த கோளறு பதிகம் என்ற தேவார பதிகத்தை ஓதுவார் பாடினார். தம்பிரான் அவர்கள் நேரு அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து செங்கோலை ஒப்படைத்தார். அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வர் ஆணை நமதே என்ற வரிகளுடன் பாடல் நிறைவு பெற்றது. இந்த பதிகத்தை ஓதும் அடியவர்கள் வானுலகில் அரசு புரிவர், இதை ஆணையிட்டுச் சொல்கிறேன் என்பதே இப்பதிகத்தின் பொருள். இவ்விதம் இந்நாட்டின் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான நிகழ்வானது 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்த ஒரு பாரம்பரிய வழிமுறையை பின்பற்றி நடைபெற்றது. அது மட்டுமின்றி தெற்கு மற்றும் வடக்கு பகுதிகள் இரண்டும் ஒன்றிணைந்து ஒரே நாடாக உதயமானதை குறிக்கும் வகையிலும் உன்னதமாக அமைந்தது என்பதும் சிறப்பிற்குரியது. நேரு பல தலைவர்கள் முன்னிலையில் செங்கோலை பெற்றுக்கொண்டார். இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவராக பின்னர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட திரு ராஜேந்திர பிரசாத் இத்தலைவர்களில் ஒருவராவார். இந்த நிகழ்வானது உள்நாட்டு பத்திரிகைகள் மற்றும் சர்வதேச ஊடகங்களில் வெளியானது. 1947 ஆகஸ்ட் 25 வெளியான டைம் பத்திரிகை இந்த செய்தியை பிரசுரித்தது. 1947 ஆகஸ்ட் 14 அன்று நள்ளிரவு பண்டிட் நேரு தனது பிரசித்தி பெற்ற உரையை நிகழ்த்தினார் என்பது சிறப்பிற்குரிய தருணமாக அமைந்தது. संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं। राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ
संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था, जिनमें श्री राजेंद्र प्रसाद भी थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। ये घटना क्यों और कैसे हुई, हम सब जानते हैं कि सन 47 में भारत को आजादी देने का जब निर्णय हुआ, तब लॉर्ड माउंटबेटन को ये प्रक्रिया को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए भारत के वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जब ये प्रक्रिया करने का समय आया, तब लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जी भी कंफ्यूज थे। उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा कर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंदगी बहुत अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, भारतीय परंपराओं के जानकार, इतिहास के मर्मज्ञ ऐसे विद्वान सी राजगोपालाचारी पर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं।
उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं इसका सटीक स्तन था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि भारत में विदेशी शासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचीन और भारत की सुदृढ़ परंपरा है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर आगे चले, जिससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का था। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है, जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। आप सेंगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया। मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्मानीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 78 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य की चर्चा को प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब परमाचार्य के
इसके लिए कृतज्ञ है। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है। यह 2021-22 का HRC पॉलिसी नोट जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दर्ज है। इस पर पैरा 24 में इसकी प्रक्रिया को ढंग के साथ वर्णित किया गया है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृत काल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। यह ऐतिहासिक योजना अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। यह सभी 20 अधिनियम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनःस्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत हर्ष की बात है कि 14 अगस्त 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयं उपस्थित थे वो 96 साल के मुम्मिडी बंगारू चेट्टी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। उनका आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिलेगा। यह घटना का दूरदर्शन और दी हुई लिंक से सभी मीडिया के माध्यमों से जीवंत प्रसारण देश भर के दर्शकों के लिए, नागरिकों